Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Anubhav. Good morning, Jashan. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning.
Good morning, ma'am. Good morning. Only 35 of you. It's 11:07 already. Hurry up, join. Okay, Harshit. Good morning, ma'am. Good morning, Karthik. फर्स्ट असाइनमेंट जिसने सबमिट कर लिया है इट्स ओके, जिसने नहीं किया है प्लीज सबमिट. मैंने सेकंड असाइनमेंट अपलोड किया है एंड यू हैव टू सबमिट इट बिफोर 30th. मैम उसमें इमल्शंस के भी कुछ क्वेश्चन है तो हमें वो भी करने हैं. हाँ ऑब्वियसली ओके इमल्शंस कर तो चुके हैं हम. सस्पेंशन से पहले तो हमने इमल्शंस ही किया था. ओके ओके ऐसे एमएसटी में नहीं आ रहा था ना इसलिए. एमएसटी में भी तो आ रहा है इमल्शन. लिक्विड डोजेज फॉर्म का पार्ट ही तो है इमल्शन. बाइफेजिक लिक्विड डोजेज. अपने कहा था हम सस्पेंशन आएगा इससे. सस्पेंशन तक कहा था मैंने. सस्पेंशन तक लास्ट टॉपिक हमने सस्पेंशन किया था लिक्विड डोजेज फॉर्म में. तो उससे पहले का मैंने कहा था जितना भी आप कवर कर चुके हो आज तक वो सारा आएगा. ओके एमएसटी की कोई नोटिफिकेशन आई? नई नोटिफिकेशन की कब से है एमएसटी? नो मैम, अभी नहीं आई है. ओके, 1 more minute left. आपने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक किया था? प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन स्मॉल स्केल पे कैसे करते हैं, और पैकेजिंग वाला किया है आप लोगों ने लास्ट टॉपिक. ग्लास एंड प्लास्टिक. Yes, ma'am. Packaging. Yes, ma'am. Yes. Okay. So today we'll start with evaluation of suspension. It's 11:10 already. First of all, I'll just take the attendance. So can you see this slide, evaluation of suspensions? Yes, ma'am. Okay. So you have the idea about evaluation of suspension. पहले भी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जो है स्टडी कर चुके हैं. So in last lecture, I told you how to prepare suspension on a small scale. कि मोटर एंड पेसल लेके आपको कैसे सस्पेंशन प्रिपेयर करना है. Then how you are going to fill it into a container. And container can be any glass container or it can be any plastic container. Then how do you label your suspension? So what is the most important labeling condition in a suspension? सबसे इंपॉर्टेंट लेबलिंग कंडीशन में क्या होता है? लेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है सस्पेंशन की? It is shake well before use, because you know suspension is a liquid dosage form in which insoluble particles they are suspended in a liquid vehicle. Fine? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. coming on to how do you evaluate suspension? कि suspension तो आपने बना दी, but now you have to make sure whether it is of a good quality or it is a stable suspension or it is a unstable suspension. ठीक है? तो first of all tell me कि suspension का instability problem क्या होता है? Major instability problem in suspension is केक फॉर्मेशन फ्लोक्यूल्स बन जाते हैं. cake formation is the major instability problem in suspension. So for evaluation of suspension, there are various methods by which you can evaluate whether my suspension is of a stable quality, is it of good quality, or is it of a bad quality. कि I have to reformulate my suspension. ठीक है?
So for evaluation of suspension, there are 4 different methods. First is your sedimentation method. Second is your rheological method. And third is your electrokinetic method. And fourth is your micromeretic method. So sedimentation method, as the term suggests, it deals with the sedimentation of your insoluble particles. Okay? Whether they will form a loose cake or whether they will form a hard cake, whether you can resuspend your particles after sedimentation or not. Then comes the second evaluation technique, that is rheological method. So rheology is the branch which deals with the flow property of any liquid. And all of you know flow property is related to the density of your vehicle as well as viscosity of your vehicle. Then comes the electrokinetic method. Now electrokinetic methods, electro defines here that what is the charge on your particles, कि particles के बीच में क्या charge है. Then kinetic, जैसे Brownian movement हमने किया था कि motion में the random motion of your particles is your Brownian movement. ठीक है. Now suppose there are particles, insoluble particles है which are of same charge. सब cationic जो है आपके insoluble particles है, they are cationic. So will they form flocks? वो flock formation करेंगे या नहीं? मैम करेंगे। सेम चार्ज के जो आपके आयंस है वो फ्लॉक फॉर्मेशन करेंगे? नो मैम। No, ma'am. नहीं करेंगे, ठीक है. एंड ऑन बोथ बिटवीन बोथ टाइप ऑफ सस्पेंशन, फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड, which one is more stable? किसका केक जो है that is ज्यादा stable, मतलब if you shake it so वो जो है आपके particles they resuspend? Deflocculated. फ्लॉक्यूलेटेड, बिकॉज फ्लॉक्यूलेटेड के बीच में void spaces होता है. अगर आपके particles डीफ्लॉक्यूलेटेड स्टेट में है तो जब वो सेटल होंगे तो वो हार्ड केक बनाएंगे. लेकिन फ्लॉक्स क्या होता है? फ्लॉक्स मतलब पार्टिकल्स ने आपस में एग्रीगेट बना दिया है, उनका कोई सिमेट्री नहीं होता एग्रीगेशन का. सो वंस दे आर एग्रीगेटिंग, उनके बीच में कुछ कुछ वॉइड स्पेसेस रह जाते हैं. तो वो जैसे सेटल होंगे फ्लॉक्स आपके, तो वो वॉइड स्पेसेस ऐसे ही रहते हैं, उसको कोई भी चीज फिल नहीं कर सकती. सपोज देयर आर पार्टिकल्स, जस्ट कंसीडर आपका रेक्टेंगुलर स्लाइड है. So one particle is your hair, one particle here, one particle here, then one particle here, and there is a void space in between. ठीक है. So now this flock will settle. तो इस void space को कोई भी जो है आपका insoluble particle जो है वो fill नहीं कर सकता, because already बाहर क्या है, particles जो है attached है बाहर, तो उसको space नहीं मिलेगा उसके अंदर जाने के लिए. So the cake formation in case of flocculated suspension is a loose. इट इज अ लूज केक. आप उसे रीसस्पेंड करोगे बिकॉज बीच में खाली स्पेस है, तो जैसे आप शेक करोगे वो जो आपके पार्टिकल्स जुड़े हुए थे जिनके बीच में खाली स्पेस था वो शेक एकदम से डिस्पर्स हो जाएंगे और ऊपर मीडियम में चले जाएंगे. नाउ सपोज योर पार्टिकल दे वर ऑफ सेम चार्ज था उनके ऊपर, और वो क्या कर रहे थे, उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ है. सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल जब वो सेटल होंगे, सो दे विल सेटल इन अ सिमेट्रिकल वे. एक यहाँ पे पार्टिकल होगा, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक. तो ऐसे ऐसे करके क्या है, लेयर बाय लेयर आपके पार्टिकल सेटल होते रहेंगे. देयर विल नॉट बी एनी स्पेस लेफ्ट. जिस पार्टिकल को जहां स्पेस मिलेगा वो वहां फिट हो जाएगा. सो दैट फिटिंग ऑफ पार्टिकल्स इन द केक फॉर्मेशन इन केस ऑफ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इज वेरी रेगुलर एंड द केक फॉर्म्ड इज वेरी हार्ड. तो उसको अगर आप उस सस्पेंशन को यू विल शेक इट, तो वो सस्पेंशन क्या है आपकी, वो रीडिस्पर्स इजीली नहीं होगी. ठीक है. देन कमिंग ऑन टू माइक्रोमेरेटिक मेथड. माइक्रोमेरेटिक्स का मतलब होता है इट इज द ब्रांच व्हिच डील्स विद योर पार्टिकल साइज इवैल्यूएशन. आई टोल्ड यू कि आपका जो पार्टिकल साइज है देयर इज अ पर्टिकुलर रेंज, कि 5 माइक्रोन से ज्यादा पार्टिकल साइज यू वोंट यूज फॉर सस्पेंशन. अगर 5 माइक्रोन से ज्यादा पार्टिकल होगा, अगर आपकी सस्पेंशन जो है इट इज फॉर नॉन पेरेंट्रल रूट, मतलब अदर देन इंजेक्शन, चाहे वो टॉपिकल हो चाहे वो ओरल हो, तो अगर 5 माइक्रोन से ज्यादा साइज होगा तो आपकी जो सस्पेंशन है दैट विल नॉट बी स्मूथ, वो क्या होगी, ग्रिटी होगी. ठीक है. देन कमिंग ऑन टू, अगर पेरेंट्रल सस्पेंशन है तो उसका मैक्सिमम साइज लिमिट इज 2.5 माइक्रोन. अगर 2.5 माइक्रोन से ज्यादा का पार्टिकल होगा देन दैट विल ब्लॉक योर सिरिंज का जो नीडल है उसके ओरिफिस को वो ब्लॉक कर देगा. सो व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग सस्पेंशन वी कैन नॉट डिटरमाइन कि हमारे सस्पेंशन में हमारा पार्टिकल साइज क्या क्या है.
बिफोर प्रिपेयरिंग एनी सस्पेंशन हमें पता था, हमें मैन्युफैक्चरर ने दिया था कि दिस इज द पाउडर और इसका पार्टिकल साइज क्या है, इट इज 3 माइक्रोन्स. नाउ यू हैव प्रिपेयर्ड अ सस्पेंशन. अब सस्पेंशन जब प्रिपेयर होगी है, सस्पेंशन के अंदर ईदर पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट एज फ्लोक्यूलेटेड पार्टिकल्स या दे कैन एग्जिस्ट एज डीफ्लोक्यूलेटेड पार्टिकल्स. ठीक है, तो अगर फ्लोक्यूलेटेड स्टेट में चले जाएंगे तो हमें ऐसे नेकेड आई से वी कैन नॉट सी. ठीक है, सो ऑब्वियसली यू नीड सम इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आप अपना पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर सकते हो कि क्या पार्टिकल साइज जो है वो अभी सेम है या उसमें कोई ग्रोथ तो नहीं हुई है, उसमें कोई क्रिस्टलाइजेशन तो नहीं हुआ है. सो यू कैन इवेलुएट ऑल these things using these techniques. So coming on to first technique, that was sedimentation. So I told you हमने जब वो किया था स्टोक्स लॉ भी किया था, then we determined कि sedimentation जो speed होता है, जो velocity होता है, that depends on various things. कि what is the density of the vehicle जिसमें you have suspended your insoluble particles, what is the viscosity of that medium, what is the density of your particles. कि अगर पार्टिकल का डेंसिटी ज्यादा है, आई गेव यू 2 एग्जांपल कि यू हैव थर्मोकोल के पार्टिकल्स है आपके पास छोटे छोटे एंड यू हैव सैंड. सैंड का जो है, सैंड का डेंसिटी इज हाई, तो सैंड जो है जल्दी सेटल हो जाएगा. थर्मोकोल का डेंसिटी इज लो, तो थर्मोकोल जो है वो सेटल नहीं होगा. ठीक है, then I gave you the example of viscosity of vehicle. कि viscosity of vehicle, suppose you are adding paracetamol particles आप add कर रहे हो into 2 different types of medium. पहला medium है आपका water, दूसरा medium है आपका glycerine. So you know glycerine is more viscous than your water. Glycerine का viscosity is high. So when you are going to add particles into both type of vehicles, आप उसे शेक करोगे. तो जब आप उसे दोबारा सेटल होने के रखोगे, so you will find कि जो वाटर में जो PCM थी वो जल्दी सेटल हो गई है. हालांकि जो ग्लिसरीन में थी, बिकॉज ग्लिसरीन विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज हाई, उसमें आपके पार्टिकल जो है इजीली सेटल नहीं होंगे. देन कम्स योर डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन. डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन का मतलब होता है कि व्हाट इज द एक्सटेंट अप टू विच योर पार्टिकल्स विल फ्लोक्यूलेट. कि कितने एक्सटेंट तक वो फ्लोक्यूलेट करेंगे. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन और सेडिमेंटेशन वॉल्यूम वी हैव कवर्ड इन अर्लियर लेक्चर्स. मैंने आपको 3 तरह के डायग्राम्स दिखाए थे कि ओके, आई विल शो यू अगेन. फिर से मैं आपको शो कर देती हूँ कि हाउ डू यू कैलकुलेट सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एंड डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन. जस्ट अ सेकेंड. अच्छा, पहले ये देख लो कि मैं डीफ्लोक्यूलेटेड और फ्लॉक्स का जो मैं आपको बता रही थी. सो दिस इज अ फ्लॉक. जब भी फ्लॉक बनता है तो उसमें जो पार्टिकल एग्रीगेशन होता है वो कभी सिमेट्रिकल नहीं होता है. हो सकता है कब किसी में चार पार्टिकल्स ने ज्वाइन किया हो, किसी में 5 ने किया हो. उनके बीच में हमेशा खाली स्पेस रहता है. सो व्हेन दीज फ्लॉक्स आर गोइंग टू सेटल, अब ये एक फ्लॉक है, ये नीचे बेस पे सेटल होगा. अब ऐसा ही एक और फ्लॉक आएगा, तो ऐसा ही एक और फ्लॉक आएगा, उसका साइज भी बड़ा है, तो वो उसको स्पेस नहीं मिलेगा स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए. तो क्योंकि वॉइड स्पेस एज इट इज रह जाएंगे, आपका चाहे पार्टिकल सेटल भी हो गए. सो व्हेन जो है उस थोड़ी सी एनर्जी आप उसको दोगे, आपके ये फ्लॉक्स जो है एकदम से खुल जाएंगे. एंड देन बिकॉज डीफ्लोक्यूलेटेड में पार्टिकल्स जो है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज है, वो एक दूसरे अट्रैक्ट हो रहे हैं ना मतलब रिपेल हो रहे हैं. सो व्हेन दे विल सेटल अंडर ग्रेविटेशन
ग्रेविटेशनल पुल, तो उसको जहां उसको दे विल फिट। सो ये जो केक है, दिस इज अ हार्ड केक। इसको अगर आप रीडिस्पर्स करने की कोशिश करोगे तो ये, ओके, देन आई वाज टेलिंग यू अबाउट हम डीफ्लोकुलेशन ये में तो हार्ड केक नहीं बनेगा। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। एफ वैल्यूज हमने किया था कि एफ वैल्यूज इट इज इधर लेस देन 1, इट इज इक्वल। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द रेशियो of the ultimate volume of sediment and volume of your suspension। ठीक है, सस्पेंशन का ओरिजिनल वॉल्यूम। एक तो ये फॉर्मूला है इसका, एक सेडिमेंट का डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हाइट ऑफ सस्पेंशन। एक्सक्यूज मी मैम, Your voice is not मैम आपकी आवाज कट हो रही है बहुत ज्यादा। Sorry for the inconvenience. First of all, I'll take your attendance. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। अब आ रही है? यस मैम, अब सही है ओके मैम। ओके। मैम वो डीफ्लोकुलेटिंग वाला फिर से एक बार स्लाइड दिखाना है। मैं आपको समझाती हूँ फ्लोकुलेटिव वाला। इस स्लाइड से नहीं, मैं आपको एक नई जो है पीपीटी प्रेजेंट करके खुद से डायग्रामेटिकली समझाती हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ। सो इज द स्लाइड विजिबल टू यू? आपको अभी स्लाइड विजिबल है? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। जस्ट अ सेकंड, मैं अभी आपको बताती हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, इसको आई विल फिल इट विद सपोज ब्लैक कलर। फाइन।
दिस इज योर फ्लॉक। फ्लॉक में क्या होता है, पार्टिकल्स जो है इंडिविजुअल पार्टिकल्स दे एग्रीगेट विद वन अनदर। तो जब भी आपके फ्लॉक्स में पार्टिकल्स एग्रीगेट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिकल शेप में ही करे, ठीक है। हो सकता है आपके जो पार्टिकल्स है किसी में 5 ज्वाइन हुए हो, किसी में 4 ही ज्वाइन हुए हो, ठीक है। जैसे सपोज एक में हमारे 5 हो गए, एक में हमारे 4 पार्टिकल्स ज्वाइन हुए, ठीक है। सो दैट एग्रीगेशन इज रैंडम एग्रीगेशन, ठीक है, वो रैंडम एग्रीगेशन है। ओके, सो नाउ अब ये वाला जो हमारा वो है पार्टिकल, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, ठीक है। अब हमारे इन दोनों पार्टिकल्स ने, ओके, आई विल प्रेजेंट न्यू स्लाइड। ओके, नाउ सपोज पहला हमारा जो पार्टिकल इसमें सेटल हो रहा है वो ऐसी शेप का है, ठीक है। कमिंग ऑन टू द सेकंड वन, दूसरा हमारा जो था वो इस शेप का है। इसको मत देखना, रेक्टेंगल को मत देखो अभी। इस एक सेकेंड, रेक्टेंगल को नहीं, हम लोग अभी तो चेंज नहीं कर सकते इसको। डोंट कंसीडर इट एज ए रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल मत कंसीडर करो, इसको बस ये वाली शेप देखो। ये है आपकी 5 पार्टिकल्स का शेप, ये है आपका 4 पार्टिकल्स का शेप, ठीक है। अब ये हमारा सेटल, ये हमारा सस्पेंशन था, अब ये सेटल हो रहा है बॉटम में। ठीक है, एक ये सस्पेंशन है जिसमें आपका सरफेस से जो है बॉटम पे आपके ये सेटल हो रहा है, ठीक है, ये सेटल हो गया। तो इसके बीच में वॉइड स्पेस जो है वो तो वैसा ही रहेगा जैसा है, बिकॉज हम ऊपर से कोई प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहे हैं। ये सेटल किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सेटल हो रहा है। किसकी वजह से सेटल हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। तो ये एक आपका फ्लॉक्यूलेटेड स्टेट में जो है आपके पार्टिकल्स जो है वो इन्होंने केक फॉर्मेशन किया है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ
So okay, this is your deflocculated form. इसमें particles क्या है? Individual identity की form में exist कर रहे हैं. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो अब ये जब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सेटल होंगे सो दे विल सेटल. इसको यहाँ स्पेस मिल गया, ये नीचे आ गया, इसको भी स्पेस मिल गया, ये भी नीचे आ गया, ठीक है. फिर इसको भी स्पेस मिला, ये भी नीचे आ गया, ठीक है. ये यहाँ पे फिट हो जाएगा, जहां जहां जिसको जो जो स्पेस मिलेगा सो दे विल कम डाउन. ये ऐसे जहां जहां इन्हें स्पेस मिलेगा ये आते जाएंगे और नीचे आपके सेटल होते जाएंगे. दिस वन, दिस विल कम हियर, ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है. फिर ये वाला पार्टिकल आपका ये चला गया नीचे, फिर दूसरा पार्टिकल आएगा आपका, वो यहाँ आ जाएगा, फिर एक और आएगा, वो यहाँ आ जाएगा. फिर ऐसे करके एक और लेयर जो है वो ऊपर भी आपकी टाइटली पैक होती जाएगी. इज इट क्लियर टू यू? एक ये केक है आपका जो डीफ्लोक्यूलेटेड जो सस्पेंशन है आपकी, जब वो सेटल होगा बिकॉज उनको जहां जहां स्पेस मिलेगा वो सेटल हो जाएंगे. और एक ये है, ठीक है. इसमें क्या होगा कि ये एक बार आपका सेटल हो गया है, ये वाला जैसे सपोज, अब इसके ऊपर एक और कोई सेटल हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो इसके अंदर नहीं घुस सकता, इसके साइड में तो जगह ले लेगा, लेकिन ये जो वॉइड स्पेस है इन पार्टिकल्स के बीच में वो इसको नहीं पेनिट्रेट कर सकता. तो ये वॉइड स्पेसेस जो है जब आपकी फ्लॉक्स सेटल होंगे तो वो हमेशा रह जाते हैं वॉइड स्पेसेस. वो कहीं बेस पे भी रह सकते हैं, वो बीच में भी रह सकते हैं, वो जो फ्लॉक्स है उनके बीच में भी रह सकते हैं, ठीक है. सो व्हेन यू विल शेक इट, जैसे ही आप इसको, अब ये सेटल हो गया, मान लो ये सेटल हुआ है, ये यहाँ सेटल हो गया, यहाँ पे कहीं पे. तो अब जब आप शेक करोगे दोनों टाइप्स का सस्पेंशन, एक ये है आपका फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन और एक है ये है आपका डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन. तो ये जो है हार्ड केक फॉर्म कर देता है बिकॉज इसने जितना भी स्पेस था वो कवर करने की कोशिश कर दिया. इसमें वॉइड स्पेसेस बहुत कम रहते हैं, मिनिमम वॉइड स्पेसेस है, बस ये थोड़े थोड़े जो पार्टिकल्स के बीच में हमें दिख रहा है बस वही वॉइड स्पेसेस है. इसमें वॉइड स्पेसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज वो फ्लॉक्स के अंदर भी वॉइड स्पेसेस है और फ्लॉक्स क्योंकि डिफरेंट शेप्स के हैं तो वो जब आपस में सेटल होंगे तो भी उनके बीच में स्पेसेस रह जाएंगे. सो नाउ व्हाट हैपेंस, इसका जो केक होगा वो लूज होगा बिकॉज हम ऊपर से कोई प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से दे आर सेटलिंग डाउन, ठीक है. वो सेडिमेंट हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल. तो ये वाला जो, अब इसे अगर आप शेक करोगे बिकॉज इसमें स्पेसेस थे पहले से ही, इसमें वॉइड स्पेसेस थे, तो अगर हम इसको फोर्सफुली शेक करेंगे, जैसे ही हम शेक करेंगे तो हो सकता है ये फ्लॉक्स एकदम से फिर से दोबारा से सस्पेंड हो जाए, पूरे मीडियम में आ जाए. ये वाला केक था बिकॉज इनमें क्या है, इतनी ज्यादा टाइट पैकिंग हो चुकी है कि वॉइड स्पेसेस इतने ज्यादा नहीं है, तो अगर हम उतनी ही फोर्स से इसको भी शेक करेंगे तो ये इजीली जो है जो आपके पार्टिकल्स है वो डिस्पर्स नहीं होंगे. सो इज द पॉइंट क्लियर टू यू? सबको क्लियर हो गया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now coming on to how do you measure the sedimentation volume. एक तो पहले आपने इनिशियल अपना सस्पेंशन बनाया, उसे सेटल होने के लिए रख दिया, सपोज आपने उसको 2 months के लिए रखा है, तो आपके जो पीसीएम पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाएंगे. तो पीसीएम पार्टिकल्स एक बेड बना देंगे, एक केक फॉर्मेशन कर देंगे. तो केक फॉर्मेशन जो करेंगे या तो आप उसका वॉल्यूम नोट डाउन कर सकते हो या आप उसकी स्केल से हाइट मेजर कर सकते हो, इनिशियल हाइट और ये आपकी फाइनल हाइट है. तो आप इस फॉर्मूला में डाल दोगे. फॉर्मूला क्या था आपका, VU अपॉन V नॉट. VU क्या था, सेडिमेंटेशन के बाद क्या वॉल्यूम है एंड बिफोर सेडिमेंटेशन क्या वॉल्यूम है या क्या हाइट है. तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, योर सेडिमेंटेशन
वॉल्यूम एंड सेडिमेंटेशन हाइट। तो अब इधर आ जाओ फिर से। नाउ सपोज अगर आपकी एफ वैल्यू 1 आती है कि बिफोर जो है रेस्ट करने से पहले भी आपकी जो सस्पेंशन थी, जो आपने फॉर्मुलेशन बनाया था वो 100 ml था, और आपने उसको 2 मंथ्स के लिए स्टोर किया तब भी वो 100 ml है, तो एफ वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब एक ये स्टेट है, इसमें क्या है कि आपने अपना सस्पेंशन इनिशियली 100 ml था, फिर सेटल होने के लिए रखा तो 50 ml सेटल हो गया। हो सकता है ये डीफ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन हो, ये हार्ड केक बना दे, ये सस्पेंड भी ना हो। एफ वैल्यू इसमें क्या आएगी 0.5। तो इन दोनों में से अगर हमारे पास पैरामीटर 1 आता है तो हमारी सस्पेंशन स्टेबल है या अनस्टेबल, इज इट ऑफ गुड क्वालिटी और बैड? बीच वाली में अगर आपकी एफ वैल्यू 1 आती है, गुड so इज इट अ Good, गुड yeah. सस्पेंशन? गुड Good मैम suspension. So this is how you evaluate your suspension. So coming on to today's topic again, आज का जो टॉपिक था हमारा, so यहाँ पे थे हम। So this is your good suspension. Okay. फिर आता है आपका डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन भी क्या था, बीटा वैल्यू से हम डिटरमाइन करते हैं। तो वो भी अर्लियर लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। तो जितनी ज्यादा फ्लॉक्यूलेशन की टेंडेंसी होगी आपकी सस्पेंशन की, तो उतने ज्यादा फ्लॉक्स बनेंगे, वो सेटल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको रीडिस्पर्स करना चाहोगे तो वो इजीली रीडिस्पर्स भी हो जाएंगे, ठीक है। अब सपोज देयर वाज अ सस्पेंशन जो डीफ्लॉक्यूलेटेड है और उसने हार्ड केक बना दिया, उसमें कोई फ्लॉक्यूलेशन नहीं हो रही है। सो नाउ यू इवैल्यूएट, आपने कुछ टाइम के लिए अपना सस्पेंशन स्टोर किया तो उसने पार्टिकल सेडिमेंट हो गए, हार्ड केक बना दिया। सो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि अगर आप दोबारा से सस्पेंशन बना रहे हो तो आप उसमें कौन सा एजेंट ऐड करोगे ताकि आपके जो है केक फॉर्मेशन हार्ड ना हो? फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट फ्लॉक्यूलेटिंग। तो आप उसमें फ्लोकुलेटिंग एजेंट डाल सकते हो, आप उसमें विस्कोसिटी का मीडियम भी बढ़ा सकते हो सकता है कि अगर हम सिर्फ मीडियम का विस्कोसिटी बढ़ाए तो हमारे पार्टिकल सेटल ना हो। सो यू रीफॉर्मुलेट, आप जैसे जैसे इवैल्यूएशन करते जाते हो तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो, आप रीफॉर्मुलेट करते हो अपनी सस्पेंशन को, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, ये मैंने आपको बता दिया है। सो यूजुअली क्या होता है कि आपने जब भी सेडिमेंटेशन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आपने 1 डे के लिए स्टोर करना है, फिर आपने सेडिमेंट वॉल्यूम देखना है या हाइट देखनी है, फिर 2 डेज, फिर 3 डेज, 7 डेज, और फिर उसके बाद वीकली देखना है एट द एंड ऑफ ईच वीक, और आपने ये 12 वीक्स तक करना है, ठीक है। सो 12 वीक्स तक करना है, और आपने क्या करना है, 3 सिलेंडर्स लेने हैं, मतलब एक में भी आपने सस्पेंशन लेनी है, दूसरे में भी और तीसरे में भी, बिकॉज आपको जो रिजल्ट्स प्रेजेंट करने होते हैं वो करने होते हैं मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और मिनिमम आपको ट्रिप्लिकेट्स में परफॉर्म करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट। कमिंग ऑन टू रियोलॉजिकल मेथड। रियोलॉजिकल मेथड का मतलब होता है कि व्हाट इज द फ्लो बिहेवियर ऑफ योर पार्टिकल्स एंड हाउ डू दे सेटल, ठीक है। आपके जो मीडियम है उसका विस्कोसिटी या डेंसिटी कितना है, तो उस पर डिपेंड करेगा आपका सेटलिंग बिहेवियर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, हार्ड केक बन रहा है, सो यू हैव द ऑप्शन कि आप अपने व्हीकल का विस्कोसिटी बढ़ा दो। लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि व्हीकल का विस्कोसिटी है कितना, या हमारी जो सस्पेंशन हमने बताई है अभी उसका विस्कोसिटी कितना है। सो देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स, छोटे छोटे ग्लास के एपरेटस होते हैं जिसको कहते हो आप विस्कोमीटर, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर होता है। सो देयर दैट इज अ ग्लास एपरेटस, उसमें आप क्या करते हो, अपना लिक्विड डालते हैं एंड यू काउंट द ड्रॉप्स कि उसमें से कितने ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतने इजीली जल्दी जल्दी ड्रॉप्स गिरते हैं, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतने धीरे धीरे ड्रॉप्स गिरते हैं। देन देयर इज अ फॉर्मूला, आप कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिरे कितने टाइम पे, उससे आप विस्कोसिटी डिटरमाइन करते हो। नाउ देयर आर फ्यू डिजिटल विस्कोमीटर्स आल्सो, ये डिजिटल विस्कोमीटर है, यू जस्ट डिप दिस रॉड इनटू योर सस्पेंशन और जो भी आपको सॉल्यूशन का विस्कोसिटी डिटरमाइन करना है, देन वो डिजिटली आपको रीडिंग देगा कि आपकी विस्कोसिटी कितनी है, ठीक है। नाउ सपोज आपका सस्पेंशन का विस्कोसिटी 1.5 था और आपको लग रहा है कि इसमें हार्ड केक फॉर्मेशन हो रही है, सो यू कैन ऑलवेज ऐड सम विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट्स, आप उसमें कुछ सस्पेंडिंग एजेंट डाल दो या कुछ थिकनिंग एजेंट्स डाल दो उसमें, तो जिससे आपका विस्कोसिटी 2 हो जाए या 2.5 हो जाए, और आप फिर से क्या करोगे,
सेडिमेंटेशन डिटरमाइन करोगे कि क्या आप सेडिमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो दिस इज हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ this is how you calculate viscosity, and you know what is the role of viscosity of your medium on the sedimentation velocity. ठीक है. Now coming on to electrokinetic method. Electrokinetic method का होता है, एक तो you have to determine the electric charge on your particle, and other than that आप कुछ एक बहुत highly sophisticated instrument होते हैं जो आपको motion भी बता देते हैं उसका. But जो usually use किया जाता है that is a zeta sizer. जीटा पोटेंशियल मैंने आपको बताया था. जीटा पोटेंशियल हम डिटरमाइन करते हैं कि वेदर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टाइटली बाउंड लेयर एंड द लूजली बाउंड लेयर. ठीक है. तो अगर आपका जीटा पोटेंशियल इज बिटवीन -20 टू +20 मिलीवोल्ट, तो आपकी सस्पेंशन क्या होती है? दैट इज अ स्टेबल सस्पेंशन. ठीक है. लेकिन अगर आपकी जो सस्पेंशन होती है वो -20 वोल्ट से कम या +20 मिलीवोल्ट से ज्यादा हो, तो वो क्या हो जाती है? आपकी इनस्टेबल सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. सो नाउ दिस इज अनदर इंस्ट्रूमेंट जिसको माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस कहते हैं. इसमें क्या होता है? यू कैन विजुअली चेक द पार्टिकल्स. आप इसमें विजुअली क्या है उनका काइनेटिक बिहेवियर भी चेक कर सकते हो. ठीक है. Then coming on to okay, how do you determine zeta potential? This is the instrument. This is the zeta sizer. So here you find यहाँ पे एक पॉकेट सी बनी हुई है. जैसे आप लोगों ने 11th 12th में यूवी स्कैन किया होगा कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देयर इज अ पॉकेट जिसमें आप अपने सब्सटेंस को यू ऐड इनटू अ क्यूवेट, यू पुट दैट क्यूवेट इनसाइड एंड देन यू चेक द रीडिंग. ठीक है. सो इसके साथ मॉनिटर ज्वाइन किया गया है. सो हेयर यू कैन फाइंड आउट. आप अपना सस्पेंशन लोगे. सस्पेंशन आपने लिया है, उसको आप डाइल्यूट करोगे एंड देन आप उसको क्यूवेट में डालोगे और आप पैरामीटर सेट करोगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33. These are the standard parameters, and then you will determine zeta potential at different days. 0 day पे मतलब fresh suspension का क्या था, then after 1 week, 2 week, 3 week and after 4th week. So now suppose fresh suspension का आपका zeta potential it was suppose +1, वो +1 था. So +1 lies in the range of -20 millivolts to +20 millivolts. लेकिन सपोज 28th डे आते आते आपकी जो जीटा पोटेंशियल वैल्यू है वो कितनी हो गई है? +70. कितनी हो गई है? +70. सो इज इट अ गुड जीटा पोटेंशियल वैल्यू? आपका सस्पेंशन इज इट अ स्टेबल सस्पेंशन और इनस्टेबल सस्पेंशन? अगर आपकी स्टोरेज के बाद जीटा पोटेंशियल वैल्यू जो है वो +70 हो जाए, अनस्टेबल अनस्टेबल है. ठीक है. सो दैट इज द रोल ऑफ जीटा पोटेंशियल. Then coming on to micromeretic method. Micromeretic method मैंने कहा था it is used to determine the particle size, कि आपके insoluble particles का particle size कितना है. So micromeretic method आप दो तरीके से particle size determine करते हो. One is microscopy, कि आप अपने suspension को slide पे लो, और माइक्रोस्कोप जो आपके आजकल एडवांस्ड वर्जन माइक्रोस्कोप आते हैं तो उसमें स्केल बार्स हम पार्टिकल के साथ लगा सकते हैं. जैसे हमें पार्टिकल दिख रहा है उसके साथ हमें स्केल बार भी शो हो जाएगा कि इसका साइज कितना है. देन देयर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं काउंटर मेथड. इसमें क्या होता है? देयर इज अ रॉड जिसपे ना एक ऑरिफिस होता है. ऑरिफिस मतलब एक होल सा होता है उस रॉड में. सो यू हैव टू डिप दैट रॉड इनटू योर सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड उसके साथ ना एक डिफ्लेक्टर जॉइंट होता है. तो अब जितने ज्यादा पार्टिकल्स आपके स्ट्राइक करेंगे ऑरिफिस के साथ, उस होल के साथ, आपकी उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी. ठीक है. तो जितना बड़ा पार्टिकल है उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होती है, जितना छोटा पार्टिकल होता है उतनी कम डिफ्लेक्शन होती है. सो दैट इज हाउ यू डिटरमाइन साइज यूजिंग काउंटर मेथड. ये आता है फिर आपका फोटो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है. ये एडवांस्ड वर्जन माइक्रोस्कोप है. इसमें क्या है? आपने स्लाइड पे अपना जो है उसको रखना है सस्पेंशन को, डाइल्यूट सस्पेंशन को, एंड देन यू विल ऑब्जर्व. और यहाँ पे देयर इज अ मॉनिटर अटैच्ड. आप मॉनिटर में क्या कर सकते हो? जो आपको लग रहा है कि ये एरिया ऑफ सस्पेंशन मेरा सही है, आप इमेज कैप्चर कर सकते हो. यू कैन ऑलवेज टेक इमेज. आप इमेज अपने पास कैप्चर करके रख लो. तो जब भी आप अपनी सस्पेंशन को या पब्लिश कर रहे हो, मतलब आप उसका कोई पेपर पब्लिश कर रहे हो या उसको जो है आप कॉमर्शियलाइज करना चाहते हो, सो यू ऑलवेज हैव टू गिव डेटा. सो यू कैन गिव डेटा कि इनिशियली जब मैंने सस्पेंशन बनाया था तो दीज पार्टिकल्स वर स्फेरिकल.
तो अगर आफ्टर स्टोरेज मतलब आपने उसको 28 डेज तक स्टोर कर लिया, अगर आपके पार्टिकल्स अभी भी स्फेरिकल है, देयर इज नो चेंज, देन दिस इज योर स्टेबल सस्पेंशन। लेकिन अगर पार्टिकल चेंज हो गए या वो निडल शेप में कन्वर्ट हो गए, उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो गया, देन दैट इज अ बैड क्वालिटी सस्पेंशन। ठीक है, वो क्या है, अनस्टेबल सस्पेंशन है। देन कम्स देयर इज अनदर टेस्ट जिसको हम कहते हैं फ्रीज थॉ टेस्ट। फ्रीज थॉ टेस्ट में क्या होता है कि यू विल टेक योर सस्पेंशन, आप उसको फ्रीज कर दोगे 18 आवर्स के लिए। अब 18 आवर्स के बाद यू विल टेक आउट योर सस्पेंशन, आप उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे 4 to 6 आवर्स। तो ऐसे ऐसे आप रिपीट साइकिल्स दोगे, उसको फ्रीज करोगे, फिर उसको रूम टेम्परेचर पे लाओगे, वो मेल्ट हो जाएगी। सो दिस इज द फ्रीज थॉ। अब आप 10 टाइम्स क्या करोगे, फ्रीज थॉ साइकिल करोगे। अब आपने 10 टाइम्स कर लिया, देन यू विल टेक आउट योर सस्पेंशन एंड देन यू विल, एक तो आप पहले विजुअली देखोगे, आपको विजुअली दिख जाएगा कि अगर तो उसमें क्लाउडीनेस आ गई है कि पार्टिकल्स जो है अलग अलग होकर उन्होंने क्लाउड्स बना दिए, देन दैट इज अ बैड क्वालिटी सस्पेंशन। लेकिन अगर आपकी सस्पेंशन जो है वो 10 टाइम्स फ्रीज थॉ साइकिल देने के बाद भी उसकी जो है अपीयरेंस वैसी ही है जैसी फ्रेश सस्पेंशन की थी, देन दैट इज अ गुड क्वालिटी सस्पेंशन। और सपोज अगर आप विजुअली नहीं देख पा रहे हो, यू कैन ऑल्सो चेक द सस्पेंशन इन, ऐसे फोटो माइक्रोस्कोपिकली भी देख सकते हो आप। तो अगर फ्रेश सस्पेंशन ऐसी दिख रही थी और फ्रीज थॉ साइकिल देने के बाद भी ऐसी ही दिख रही है आपको इमेज, ऐसे ही पार्टिकल्स है, देन दैट इज अ गुड क्वालिटी सस्पेंशन। ठीक है, देन कम्स योर पीएच मेजरमेंट। यू कैन ऑलवेज चेक पीएच ऑफ योर सस्पेंशन। तो पीएच आप कैसे चेक कर सकते हो, इधर यूजिंग अ पीएच पेपर। आप पीएच पेपर स्ट्रिप लोगे, डिप करोगे सस्पेंशन में, एंड देन देयर विल बी कलर चेंज, और आप उसको जो रेफरेंस पीएच स्केल दिया होगा पीएच पेपर के बाहर, आप उससे कंपेयर कर सकते हो, यू कैन फाइंड द पीएच वैल्यू। अदर देन दैट यू कैन ऑलवेज चेक पीएच इन अ पीएच मीटर। ये एक पीएच मीटर है। पीएच मीटर में क्या होता है कि आप सस्पेंशन, आप इलेक्ट्रोड डिप करते हो सस्पेंशन के अंदर, देन यू गेट द वैल्यू डिजिटली। आपको डिजिटल, जैसे यहाँ 7.27 है, तो योर डिजिटल वैल्यू आप, यू कैन ऑलवेज टेक द पीएच रीडिंग। अब पीएच भी जो है आप डिटरमाइन करते हो, फ्रेश की करोगे, फिर उसको स्टोर करोगे, आफ्टर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, अप टू 12 वीक्स, आप अलग अलग वीक्स में पीएच डिटरमाइन कर रहे हो। तो हमारी जो पीएच है वो फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए। नाउ सपोज योर सस्पेंशन इज फॉर पेरेंट्रल पर्पस, उसको हमने इंजेक्ट करना है। सो वी ऑल नो कि जब भी हमने कोई भी पेरेंट्रल सस्पेंशन इंजेक्ट करनी है, उसका पीएच कितना होना चाहिए, न्यूट्रल, जितना ब्लड का पीएच है। नाउ सपोज हमने सस्पेंशन बनाया एंड विद टाइम आफ्टर 12 वीक्स उसका पीएच चेंज हो गया, वो पीएच कितना आ गया, 3। सो व्हाट यू विल डू, अभी इस सस्पेंशन के साथ आप आगे नहीं जा सकते, आपको सस्पेंशन रीफॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। तो पीएच मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इंग्रेडिएंट्स डू वी ऐड इन अ सस्पेंशन? बफर्स। बफर्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बफर्स हम ऐड कर सकते हैं हमेशा। वेरी गुड। ओके, देन आप, ये तो हो गया सारा। एक विजुअली भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हो कि जो हमने सस्पेंशन बनाया, इज इट डज इट हैज अ गुड अपीयरेंस, क्या उसकी एस्थेटिक अपीयरेंस अच्छी है, या उसमें आपको अलग अलग से जो पार्टिकल्स है वो दिख रहे हैं कि उन्होंने क्लाउड फॉर्मेशन कर दिया। सो दैट इज द विजुअल इंस्पेक्शन, आप विजुअली भी इंस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन कम्स द डिसोल्यूशन स्टडी ऑफ सस्पेंशन। अब हमें पता है कि सस्पेंशन में पार्टिकल जो है ऑलरेडी जो है डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में रह रहे हैं। जैसे आपका टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है, उसके लिए आप डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हो, लेकिन ये तो ऑलरेडी पार्टिकल्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके केस में डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नहीं होता है, डायरेक्टली डिसोल्यूशन टेस्ट होता है। डिसोल्यूशन टेस्ट का मतलब है कि व्हेनेवर यू आर टेकिंग सस्पेंशन, जैसे ओरल सस्पेंशन है, तो वो आपके कहाँ जाके कितना पोर्शन उसका डिसॉल्व होगा, क्या वो स्टमक में डिसॉल्व होगी, क्या वो इंटेस्टाइन में जाके डिसॉल्व होगी। सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप डीजो टेस्ट करते हो। इसमें जो है 8 चेम्बर्स है, ग्लास के चेम्बर्स है। इसमें यू फिल इन दी लिक्विड जो माइमिक करता है हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड को। सपोज अगर हमें ये चेक करना है कि वेदर सस्पेंशन इज गोइंग टू डिसॉल्व इन स्टमक और इंटेस्टाइन, तो अगर पहले आप इसमें स्टमक की पीएच जितना एक जो है लिक्विड बनाओगे उतनी पीएच का, और इसमें फिल कर दोगे। ठीक है, देन यू विल ऐड योर सस्पेंशन विद अ सिरिंज। इसमें जो वॉल्यूम होता है हर एक चैम्बर में, दैट इज 900 ml। वो कितना होता है, जितना हमारे स्टमक में जो है वॉल्यूम होता है लिक्विड का, बायोलॉजिकल फ्लूइड का।
तो उतना आप वॉल्यूम इसमें डालोगे, देन यू विल ऐड सस्पेंशन एंड देन यू विल स्टार्ट दिस इंस्ट्रूमेंट। इसमें पैडल्स लगे हैं, ये पैडल्स रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स यू विल टेक आउट सैंपल और आप उसका यूवी लोगे। तो यूवी लोगे, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन आपकी, जितना ज्यादा आपका सस्पेंशन डिसॉल्व होके मीडियम में जाता है, उतनी ज्यादा वैल्यू आपको एब्जॉर्बेंस की आती है, ठीक है। सो अब आपने यहाँ से 5 ml निकाला, उसका यूवी लिया, लेकिन आपको सिंक कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे हमारा स्टमक में जो वॉल्यूम होता है फ्लूइड का, वो कभी चेंज नहीं होता है। वो जो अगर जितना हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, उतना ही हमारी बॉडी जो है वहां पे उसको फिल कर देगी। तो यू हैव टू मेंटेन सिंक कंडीशन। तो 5 ml क्या है, आपको एक्सटर्नल मीडियम फिर से ऐड करना है, मतलब डिसोल्यूशन फ्लूइड आपने इसमें डाला था और 5 ml फिर से ऐड करोगे। फिर आफ्टर 2 आवर्स आप फिर से 5 ml निकालोगे, फिर से 5 ml इसमें डिसो मीडियम ऐड करोगे। सो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन कि कितना जो कंसंट्रेशन है हमारा वो किस एरिया में जाके हमारा डिसॉल्व होगा। नाउ सपोज आपने डिसोल्यूशन टेस्टिंग कर लिया 24 आवर्स के लिए। नाउ यू विल रिप्लेस दिस मीडिया। अब आप इसमें क्या करोगे, इंटेस्टिनल मीडिया को माइमिक करने वाला बेसिक पीएच, अल्कलाइन पीएच 6.8 पीएच का हम इसमें सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। 6.8 डालेंगे और फिर से क्या करेंगे, जो है सस्पेंशन का इवैल्यूएट करेंगे कि कितना जो है आपकी सस्पेंशन वो आपके इंटेस्टाइन में जाके जो है डिसॉल्व होगी इन योर फ्लूइड। सो व्हाट आर द कंसिडरेशन कि एक तो ये 1 लीटर कैपेसिटी के होते हैं, इसमें 900 ml आपका फ्लूइड होता है and it is always maintained at 37 degree centigrade because it is the body temperature। और आपको रोटेशंस कितनी देनी है, ये जो पैडल्स है इसकी कितनी रोटेशन होनी चाहिए, 25 rpm। सो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन कि कितना आपका जो है सस्पेंशन का डिसोल्यूशन होगा, वो कहाँ जाके डिसॉल्व होगा। सो इज इट क्लियर टू यू? आई गेस आज का टॉपिक बहुत इजी था। ओके, other than this please submit your first as well as second assignment। second assignment का deadline is 30th November, ठीक है। 30th November से पहले पहले दोनों सबमिट कर देना। अगर किसी का डिले हुआ 30th November के बाद, तो उस असाइनमेंट में उसको जो है ग्रेड या मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैम जो कल दिया आपने, हाँ वो सेकेंड असाइनमेंट है। वो उसकी डेडलाइन क्या है? सेकंड की 30th है, दोनों की 30। एक की तो मैंने डाली नहीं है ना, लेकिन आपको 30th ही है डेडलाइन दोनों के लिए, फर्स्ट की भी और सेकंड की भी। उसमें लिखा हुआ Because सबमिटेड बाय टुमारो 5 PM। व्हाट हर्ष, व्हाट यू आर सेइंग? मैम इसमें लिखा हुआ है कि सबमिटेड बाय टुमारो। मैम वो दूसरी Tomorrow असाइनमेंट किस- में लिखा है। नहीं वो कोई और होगी, कोई और होगी। ओके ओके। सब्जेक्ट नेम चेक कर लेना, मैंने उसमें सूटिक सब्जेक्ट डाला है, आपका कोड भी डाला है। आपकी मैम दोनों की 30 है। दोनों की 30 है, तो 30 से पहले पहले दोनों सबमिट कर लेना। अगर 30 के बाद आपकी एक भी असाइनमेंट रही तो आई वोंट गिव यू मार्क्स और ग्रेड्स फॉर दैट। मैम ठीक है। इनके मार्क्स लेंगे? मैम आपने इनके मार्क्स भी लगते हैं, डिपेंड्स ऑन पीटीयू। अगर पीटीयू कहेगा कि असाइनमेंट के मार्क्स लगाने हैं तो हमें मार्क्स लगाने पड़ते हैं। एवरेज ऑफ मार्क्स लगता है फिर असाइनमेंट का। मैम मेरे को एक सिलेबस में थोड़ा कंफ्यूजन है। मैम आपने पाउडर समय कराया है अभी? नहीं Second नहीं module, नहीं अंकित, नहीं कराया। सॉलिड डोजेज फॉर्म। ओके, क्योंकि सेकंड मॉड्यूल में वो भी था ना। एंड मैम जो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन है उसमें आपने हमको पीडियाट्रिक कैलकुलेशन कराई है, तो पीडियाट्रिक कराई है और एक दो कैलकुलेशंस और रहती है जो मैं आपको अपकमिंग एक दो लेक्चर्स में करवा दूंगी। ओके। बहुत तो इजी हमें कैलकुलेशन है। हमें सिर्फ Density, पीडियाट्रिक volume। वाला करना है सिलेबस के लिए अभी, क्योंकि क्या आपने करना है? आपने कहा कि हमें अभी तक जितना कराया है मतलब सस्पेंशन तक उतना करना है, तो मतलब हमें सिर्फ पीडियाट्रिक इसमें करना है। आज आपका सस्पेंशन जो है कंप्लीट हुआ है, बस इतना ही आएगा इवैल्यूएशन पार्ट तक, Yes, इससे ma'am। ज्यादा नहीं आएगा। ओके, फिर हमें जो पेडियाट्रिक वाला सिर्फ उतना ही करना है, जो क्योंकि इसमें पूरा एक वो है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के अंदर बहुत सारे। डोंट वरी, मैं आपको एक दो कैलकुलेशंस और करवाऊंगी। दोज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, वो बहुत इजी कैलकुलेशंस है। हम कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे, बस वो कैलकुलेशंस करेंगे। पर मैम आएगा तो यही है ना पेडियाट्रिक वाला, क्योंकि कंटेंट नहीं तो बढ़ जाएगा ज्यादा। आप अंकित पहले देख तो लेना नेक्स्ट 2 लेक्चर्स। No, Okay, then decide।
क्योंकि इस टॉपिक बहुत सारे हैं, पीटीओ का सिलेबस मैंने खोला हुआ है तो मैंने वही देखा नहीं तो 3 आप मॉड्यूल ये है हमारे देखो पास। ना, आप ये देखो कि कितने सारे मॉड्यूल्स हैं। अगर हम फर्स्ट एमएसटी में अपना हाफ सिलेबस भी कवर नहीं करेंगे तो सेकंड एमएसटी में आप इतना ज्यादा सिलेबस कैसे करोगे? तो हो गया ना, हमारा हाफ से ज्यादा ही हो गया। थर्ड हाफ मॉड्यूल से हमने ज्यादा कर लिया, कहाँ हुआ है? थर्ड मॉड्यूल हो गया, मैं फर्स्ट मॉड्यूल हो गया, सेकंड मॉड्यूल का हमने लिक्विड डोजेज फॉर्म कर लिया और फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का पेडियाट्रिक कर लिया। ऑर्डर रहता है थोड़ा ओके ओके, डोंट वरी, इतना इतना मुश्किल नहीं है सब कुछ। There is someone who has just joined right now. I don't know this person has joined for attendance, but I'll get to know. मेरे पास टाइमिंग सबका आ जाता है किसने कब ज्वाइन किया। Ma'am, हाँ जी, once we are like over with all the leftover things, I request you to please start over with the revision. okay हर्ष, we'll start with the revision. यस मैम। And test हमारा can be वैसे secondary, but just revision of the topic by topic. And if we have doubts related to that topic, on the spot we'll ask them. Okay, so in next lecture, which topic all of you want to cover? I have a suggestion. We can make a list of the topics according to you, and then we'll follow the timetable Okay, and that particular topic. I'll give you the topics depending on which topic is more important. We'll revise our syllabus depending on the importance of the topic. Like suspension and emulsions, these are very important topic. इसके जो instability problem है, इसके जो आपको instability problems को overcome करने के लिए क्या आप करते हो, and how do you identify these types of formulation, these are all important topics. तो हम importance wise चलेंगे, ठीक है? And मैम From tomorrow we will start स्टार्टिंग में suspensions. हाँ जी हर्ष, So from tomorrow onwards, we are starting the suspensions. So which particular part, what all topics we will revise so that when we come, we will like able to understand more. Just okay, name the so topics. tomorrow no we won't start with the suspension क्योंकि suspension तो latest ही है, अभी हमने cover किया है. We'll start with the either emulsions or solutions. एंड मैम मेरे को एक चीज और पूछना है, जो हमको मैडम जी, ने अंकित। मोनिका मैडम ने जो सबसे पहला था कैलकुलेशन मतलब सॉरी डोजेज फॉर्म्स वाला जो हमारा मॉड्यूल 1 के अंदर है, उसमें बहुत ही Okay. ज्यादा डिटेल्ड वर्जन है मैडम ने हमको दिया था। तो मेरे को पूछना था उसमें से, जब भी आप कल कराओगे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी उसके बता देना मैम, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड वर्जन है, मतलब ऐसा Okay, लगता है okay. कि काफी ज्यादा ही Okay, लगता है okay. कंटेंट। Sure, एक sure, बार sure. आप देख के बता देना कौन सा उसमें Sure, ज्यादा sure. important Sure. मैम फार्माकोपियाज के भी। ठीक है भव्य। मैम उससे भी सस्पेंशन में मैम मल्स People who have doubt can stay, others can leave. Thank you, ma'am. Okay. मैम फार्माकोपिया से भी क्वेश्चन दोगे आप? आ सकता है शॉर्ट नोट फार्माकोपिया पे। I'll just let you know, मैं आपको एक काम करूंगी, जब भी मैं आपको अभी एक जो है पीडीएफ सेंड करूंगी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर पे क्या सिलेबस आ रहा है, सो आई मार्क द टॉपिक, कौन से टॉपिक्स जो है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Please. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी हर्ष। मैम आस्था के प्रेजेंट लगा दो, वो हर्षित के आईडी से ज्वाइंड है। हाँ मुझे पता है, डोंट वरी. मैम यस, मैम आपने कल होमवर्क क्या दिया? मेरा नेटवर्क इशू हो गया था मैम। असाइनमेंट दी है मैंने आपको, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है वो, और गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड है. नहीं मैम, होमवर्क सॉरी असाइनमेंट के अलावा जो प्रिपेयर करना है टॉपिक वो। उसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं दिया, असाइनमेंट ही दी है, और उससे पहले एक असाइनमेंट है प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर, बस वही है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं दिया. मैम एक रिवीजन की कोई बात हो रही थी ना, हर्ष बोल रहा था फिर। नहीं, मैम कल सिर्फ मैंने जो लेक्चर लिया था दैट वाज ऑन हाउ डू यू अटेम्प्ट योर आंसर्स. हमने कोई मैम टॉपिक तो कवर ही नहीं किया था. नो आपको तो मैंने करवाया ही नहीं है हाउ डू यू अटेम्प्ट द आंसर्स. वो शायद मैंने ही करवाया है बैच बी को.
पाथवे समझा देते हैं। यस मैम। डाउट सेशन ले लो प्लीज मैम, जो आता है वो तो आते हैं मैम, वो तो अटेम्प्ट कर देंगे, जो नहीं आ रहा प्लीज एक डाउट सेशन। चलो डाउट सेशन कर देते हैं। पूरे Thank you, टॉपिक का ma'am. डाउट सेशन करना है या सिर्फ पाथवेज का? लाइक टॉपिक है आपका, जैसे इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग बीच बीच में से टॉपिक्स है कुछ, जैसे बीच यस मैम। उसमें मतलब सिग्नलिंग पाथवेज एक टॉपिक है या उसके अलावा और भी टॉपिक है जिसके आपको डाउट्स हैं? मैम सिग्नलिंग पाथवे में पाथवेज ज्यादा टफ है मैम एक्चुअली। पाथवेज मतलब एक रिवीजन आपको सेशन सिर्फ पाथवेज टॉपिक पे चाहिए, बाकी किसी टॉपिक में कोई हमें दिक्कत नहीं है, वो मैं पूछ रही हूँ। उसके अलावा कोई और टॉपिक? उसमें और भी ऐड कर लेंगे मैम, जो हमारे खुद के और भी डाउट्स हैं टोटल। वही पूछ रही हूँ ना, एक बार थोड़ा मुझे बता दो ना कि कितने कितने आपके डाउट्स हैं, क्या है, वही एक ओवरऑल पूछ रही हूँ। एक समराइज में टॉपिक्स बता दीजिए कहाँ डाउट्स हैं। इसमें बाकियों के किसी में भी हो सकते हैं, मतलब पाथवे सबके हैं और बहुत ज्यादा ही इसमें पाथवेज तो मैम confusion पूरी यस क्लास में मैम दिक्कत है। पाथवे तो पूरी है। डिवीजन ही ना करिए आप लोगों ने साथ साथ में, इसलिए दिक्कत है उसमें ज्यादा। और मैम वो पता ही नहीं चलता। और इसके अलावा और मैम मेरे को पर्सनली सेल जंक्शन, बस ये दो टॉपिक्स हैं मेरे लिए तो। सेल जंक्शंस और पाथवेज। यस और मैम। कोई इसके अलावा जिसको सेल जंक्शंस और पाथवेज के अलावा कुछ और टॉपिक हो जो एक रिवीजन सेशन? देखो रिवीजन फिर वो इस तरह से होगी कि वो डिस्कशन टॉपिक होगा, ये मत एक्सपेक्ट करिए, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको एक बार टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। एक बार टॉपिक हो गया, एक बार रिवीजन भी हो चुकी है, एज अ डिस्कशन सेशन हो चुका है, ठीक है? तो डिस्कशन सेशन के बेसिस पे ही मैं आपको अभी दोबारा से डिस्कस करवा सकती हूँ टॉपिक। मैम इन बिटवीन आपको एक्टिव रह के उसमें आंसर करना होगा अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ। मैम समझ रहे हो ना बात? एक मिनट दीपक, एक मिनट। समझ में आ रही है सबको बात मैं क्या कह रही यस हूँ? मैम। यस Yes, मैम। ma'am. मैम। यस मैम। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। हाँ दीपक। मैम मैं बोल रहा था ये जो पाथ सॉरी मैम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। हाँ हाँ मैम बोलो। ये जो पाथवे है मैम इसको आप एक बार रिपीट कर दो मैम, पता नहीं चलता पूरे क्लास मतलब इसके पीछे ये कि हो ही नहीं रहा है। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसको याद करने में। स्टिल मैं फिर भी आपको रिवाइज करके ये बता देती हूँ क्वेश्चन उसमें कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, ठीक है? उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, वो सारी चीज मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है? बट इंटरेक्टिव मैम। सेशन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए खाली मैं बोल रही हूँ आप लोग मुझे कोई आंसर नहीं कर रहे हो किसी क्वेश्चन का, ठीक है? बिकॉज एज पर सिलेबस हम टॉपिक पढ़ चुके हैं अच्छे से एक बार, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, Yes, ma'am. आप लोग एक बार देख लीजिए, मुझे बता देना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। एक्सक्यूज मैम, एक सजेशन था हम्म। अगर आपको